ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮಾರು 50 ಜನರ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಶಿ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್, ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೋಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು. ಸುಮಾರು 3 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದ ಆಗ ಸರಿಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು 55 ಜನ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್, ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಫಲ ಅದು ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ಅನುಕೂಲ, ಅವಕಾಶ, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಹೋಗ್ತಾಯ್ತಿ ನೋಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈನಾಗೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಚಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 55 ಜನ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿಮಾನ ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ ಮುಂಜಾನೆ 5ರ ಆಸುಪಾಸು ಇತ್ತು. ವಿಮಾನ ಹತ್ತೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಚೆಕ್ಕಿಂಗು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 50 ಜನರ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನವರಾದ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಯ್ಯನವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾವು ಹತ್ತಿದ ವಿಮಾನ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ತಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಶಿಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಶಿಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿ, ಮತ್ತೆ ಘಾಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ AC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರು. ಬಿಸಿಲು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನವರು AC ಬಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಘಾಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟವು.
ಗಂಗಾ ನದಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಘಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. इस घाट का नाम है वरुणा घाट। यहाँ वरुणा और गंगा का संगम हुआ है। ಇದು ನದಿ ಹೆಸರು ವರುಣ ಘಾಟ್ ಅಂತ. ಈ ನದಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸಂಗಮದ ಒಂದು ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ एक साथ जमा हुआ है। हाँ, विष्णु भगवान यहाँ पहला चरण रखे हैं इस घाट पे। अपना मूर्ति खुद विराजमान करके भोलेनाथ पे नगरी दे के गिफ्ट में चले गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा, दर्शन कर लीजिएगा। हाँ, ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗರುಡ ಮೇಲೆ ಸವಾರಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕೆ ಆ ಗರುಡ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು. यहाँ से विष्णु भगवान वैकुंठ चले गए, इसीलिए यहाँ काशी में जो भी मरता है उसको मोक्ष धाम प्राप्ति होता है। अपना काशी यहाँ से 14 किलोमीटर में है। हाँ, ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್ यहाँ से वैकुंठ गए सीधे। ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈಕುಂಠ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈಕುಂಠ ಹೋಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ರುನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, हाँ, ये घाट का नाम है लक्ष्मण घाट। ಈ ನದಿ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಘಾಟ್ ಅಂತ. ये हमारे प्यारे प्यारे मोदी जी आके हाँ। लक्ष्मण घाट, खिड़किया घाट, गोवर्धन घाट, ये 3 घाटों को मिलाकर एक घाट बना दिया, नमो घाट। ನಮೋ ಘಾಟ್. ಹಾ, ಈ ಘಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ 3 ನದಿ ಸಂಗಮ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು 3 ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. इस पर 3 हेलीपैड एक साथ रहता है। यहाँ बीच में VIP आते हैं, इस पे हेलीपैड है, ये बन गया है। हाँ हाँ, इस नदी में इसके ऊपर हेलीपैड है। हाँ हाँ 3 हेलीपैड एक साथ उतरता है। हाँ हाँ. जितने VIP लोग आते हैं इसी पे। ಬಿಹಾರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೆ सभी उधर ही विराजमान होते हैं। ये मंडलेश्वर महादेव, श्री पंच अग्नि अखाड़ा घाट। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से महादेव जी है, तो महादेव जी में से 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो ये एक ज्योतिर्लिंग ये भी आता है। तो यहाँ का मंडलेश्वर, केदार गौरी, मार्कंडे महादेव, सारनाथ, इस तरह करके 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो ये मंडलेश्वर महादेव है, नमस्कार कर लीजिए। ये इटामा की रानी ने बनवाया है अपने मोक्ष भवन के लिए। यहाँ 52 राजा आए हुए हैं, सभी राजा महाराजा जो है अपने मोक्ष के लिए बनवाया है। तो इटामा की रानी का जब मोक्ष प्राप्त कर गए तो ब्राह्मण को दान दे के चला गया। इसमें राम जानकी जी का मंदिर भवन है जी। जैसे जो हमको अब आखिरी समय आ जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, तो यहाँ अपना मकान बनवा के इसी में रहेगा। जो काशी में मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है, इसीलिए ये लोग मोक्ष धाम यहाँ बनता है। ये ब्राह्मण को दान देके चला गया। पंडित जो होते हैं पंडित को दान देके चला गया। इस घाट का नाम है प्रहलाद घाट जी। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में लिए यहाँ पे मिले थे। उनका मंदिर ऊपर में है। साल में 3 दिन के लिए खुलता है मंदिर। आषाढ़ के महीने में यहाँ पे जैसे रामलीला होता है, इसी तरह यहाँ पे नरसिंह लीला होता है 3 दिन के लिए। क्या है इसलिए है कि यहाँ नरसिंह भगवान का ऊपर मंदिर है। तो प्रहलाद जी गोद में नरसिंह भगवान जी के मिले अष्ट धातु की मूर्ति है, कीमती मूर्ति। जब वो खुलता है मूर्ति तो वहाँ फोर्स लग जाता है। 3 दिन के लिए, साल में 3 दिन के लिए खुलता है। ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಾಗ, VIP ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆನ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಏನು ಗಲೀಜು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸೋಪ್ ಹಾಕೋದು, ಶಾಂಪು ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಂದು ಪುನಃ ಈ ಬೋಟಲ್ಲೇ ಇಡ್ರಿ. ಬೋಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎತ್ಕೊಬೋದು. ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. इसका नाम है मार्केट। 1887 में बनाया गया है। 1887 वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया है। ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದು मदन मोहन मालवीय। ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೈನ್,
ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೈನು ಕೆಳಗಡೆ इस घाट का नाम है तेलिया नाला घाट। इस घाट की हिस्ट्री ये है कि एक तेली बिरादरी था और एक यादव बिरादरी था। तो तेली बिरादरी और यादव बिरादरी में घाट को लेकर झगड़ा हुआ। तो पहले तो पुलिस था नहीं, पुलिस पहले था नहीं, पहले पंचायत होती थी। तो पंचायत ने फैसला किया कि तेली जो तेल बेचता था, अगर उसका तेल पानी में ठहर गया तो उसका हो जाएगा, अगर यादव था उसका अगर दूध ठहर गया तो उसका हो जाएगा। तो ये हुआ, तेली का तेल ऊपर ही रह गया और यादव का दूध सूख गया। तो इस घाट का नाम पड़ गया तेलिया नाला। ये इसके साइड में आ रहा है ये सक्का घाट। सक्का घाट का ऊपर में वो सक्का बाबा का मंदिर है, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है सक्का घाट। घाट का नाम है नंदीश्वर घाट। और नंदीश्वर वो भाई थे, तो ये लोग आए थे कलकत्ता से यहाँ। तो ये लोग के माता पिता की मुक्ति के लिए आए थे। तो इस घाट को हम निर्माण किया। वो बड़ा वाला मंदिर नंदी का और छोटा वाला मंदिर नंदेश्वर का। ये बड़ा मंदिर घाट का नाम है नंदेश्वर। घाट का नाम है गोला घाट। पहले के समय में जब ये सब ट्रक बस और ये सब साधन नहीं था, जब बैलगाड़ी चलता था तो ये पानी के रास्ते काशी का सामान आता था, तो ये यहीं पर उतरता था। तो यहाँ से ऊपर के सामान सिटी में जाता था। हाँ, ऊपर में पहले ये सिटी वगैरह नहीं था, पहले पूरा पहाड़ जंगल था। उस समय दूर से ही सामान आता था, तो यहाँ से काफी ऊपर जाता था। इस घाट का नाम पड़ा गोला घाट। इस घाट का नाम है त्रिलोचन घाट। ऊपर में त्रिलोचन महादेव जी का मंदिर है। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में अनेकों मंदिर है, 12 मंदिर है, तो ये है त्रिलोचन घाट। तो ये त्रिलोचन घाट मंदिर है। इसके बाजू में आ रहा है ये बद्री नारायण घाट। जो लोग बद्री नारायण नहीं जा पाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ, तो ये यहाँ दर्शन करने से, बद्री नारायण का मंदिर है ऊपर, यहाँ दर्शन करने से वही लाभ प्राप्त होता है इनको। तो इस घाट का नाम पड़ा बद्री नारायण घाट। कितना घाट है जी 84 घाट। काशी में टोटल 84 घाट है और सभी घाटों के अलग अलग पौराणिक महत्व हैं। कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, कुछ महत्व भी है। इस घाट का नाम है गाय घाट। इसका गाय घाट इसलिए नाम पड़ा कि जिसे गौ हत्या का दोष लग जाता है तो वो लोग यहाँ आके उससे मुक्ति पाते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं जिससे गौ हत्या का दोष खत्म हो जाता है। तो ये गौ माता के नाम पे बनाया गया घाट है गाय घाट। इस घाट का नाम है हनुमानगढ़ी घाट। ऊपर में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का टेम्पल है। हाँ, ये पेड़ के नीचे है। पेड़ के नीचे। हाँ, वो सामने अभी आएगा बोट अभी सामने। और ये बगल में डालमिया बिस्किट कंपनी, ये उसी की बिल्डिंग है। ये डालमिया बिस्किट कंपनी है ना। हाँ, ये हनुमानगढ़ी घाट। इस घाट का नाम है लाल घाट। इस घाट को बिरला परिवार ने बनवाया था। जो बिरला सीमेंट कंपनी है ये उन्हीं का है। ये पूरा एकदम महल है। वो देखिए, वो घंटा घर भी है, घड़ी वाला, घंटा वाला घड़ी। ये हाँ, ये ऊपर ये पूरा महल है। ये यहाँ पे देखिए, अब इधर करिए, अभी ये देखिए शीतला घाट। ऊपर में शीतला माता का मंदिर है। शीतला घाट है, ऊपर में शीतला माता का मंदिर है, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है शीतला घाट। मुंडी परगोटा विशेष क्या है? शीतला माता का मंदिर है। जैसे हर जगह एक लोकल में से आप लोग के यहाँ कोई देवी का मंदिर होता है ना छोटा, वो तो ऐसा ही यहाँ पे शीतला माता का मंदिर होता है। तो इसलिए इस घाट का नाम पड़ा शीतला घाट। घाट का नाम है बुंदी परकोटा घाट।
बूंदी परकोटा घाट। इस घाट का महत्व ये था कि बूंदी के राजा, बूंदी एक जगह का नाम है राजस्थान में, एक जगह है जिसका नाम है बूंदी। तो बूंदी के राजा जब ये जंगल हुआ करता था तो यहाँ पे आके उन्होंने पूरा किला बनवाया था, जो कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, कुछ अवशेष बचा है उसका, ये तो मालूम है। ये आपके सामने ब्रह्मा घाट नाम क्यों पड़ा? एक पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर राजस्थान में, और एक ब्रह्मा घाट पे ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा ब्रह्मा घाट। और उसके बाजू में आ रहा है बिंदु माधव घाट, बिंदु माधव छोटा सा लिखा है वो, इसका बिंदु माधव नाम पड़ा, ऊपर में बिंदु माधव भगवान का मंदिर है, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा बिंदु माधव घाट। ये आपके सामने आ रहा है पंचगंगा घाट। पंचगंगा इसका नाम क्यों पड़ा? हाँ, ये पंचगंगा घाट है। यहाँ पे पानी के नीचे नदियों के 5 स्रोत हैं अलग अलग, गंगा, यमुना, सरस्वती, रूपम और केरलम। ये 5 नदियाँ हैं इसके नीचे, 5 नदियों का स्रोत है। इस घाट का महत्व है, काशी में यहाँ पे कार्तिक महीने में 1 महीने का यहाँ स्नान होता है। उस स्नान से लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो 1 महीना यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। काशी के जो राजा है काशी नरेश, वो आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी घाट पे आके स्नान करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होता है। इस घाट का नाम है बालाजी घाट। ये सामने आप देख रहे हैं, इसके अंदर है बालाजी भगवान का मंदिर, इसलिए जो तिरुपति में एक बालाजी है आपके, एक बालाजी का मंदिर यहाँ भी है, तो इसलिए इस घाट का नाम पड़ा बालाजी घाट। उसके बाजू में राजा ग्वालियर घाट, ये ग्वालियर के राजा के द्वारा बनवाया गया घाट है, पूरा उनका देखिए महल था। अब काफी कुछ बदल गया है समय के हिसाब से, नहीं तो अभी भी इसके अवशेष बचे हुए हैं। ये सामने आपके राम घाट नाम इस पड़ा क्योंकि ऊपर में राम जी का मंदिर है, तो इस घाट का नाम पड़ा राम घाट। ये आपके सामने मेहता घाट, ये कभी मेहता हॉस्पिटल हुआ करता था, जो आज ये रेनोवेशन होके ये होटल बन रहा है। तो मेहता घाट ये जेपी मेहता के नाम पे बनाया गया घाट है। जेपी मेहता बहुत बड़े समाज सुधारक और गरीबों के प्रति उनका बहुत लगाव था, तो उन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण कराया था, जो अब खत्म हो गया है, तो उन्हीं के नाम पे ये घाट का नाम पड़ा मेहता घाट। इस घाट का नाम है गणेश घाट। ये पेशवा, जो मराठा पेशवा थे, ये उनके द्वारा यहाँ पे गणेश जी का मंदिर बनाया गया है। पेशवा महाराज, वो छत्रपति शिवाजी के जो पेशवा होते थे, तो ये 1807 में बनाया गया घाट है। ये भोसले घाट, ये नागपुर के भोसले परिवार के द्वारा बनवाया गया घाट है, ये उनका पूरा महल था, भोसले घाट। हाँ, नागपुर के भोसले। ये गंगा महल घाट, इसका नाम गंगा महल क्यों पड़ा? कभी गंगा के किनारे ये घाट महल के जैसा था, आज भी उसका अवशेष देखिए वो बचा हुआ है, तो ये बहुत खूबसूरत दिखता था, तो इसका नाम रख दिए लोग गंगा महल घाट। तो हर घाट की अपने अलग अलग महत्व हैं। ये बगल में संगठा घाट आ गया, ऊपर में संगठा माता का मंदिर है, जिनका काशीवासी शुक्रवार के दिन दर्शन करते हैं। सभी संकटों को, दुखों को हरने वाली माता है संगठा माता। ये सिंधिया घाट, ये विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ये उनके परिवार के द्वारा बनवाया गया घाट है सिंधिया घाट। ये मंदिर ये आपके सामने मणिकर्णिका घाट, यहाँ पे भगवान शंकर के माथे का मणि और माता सती का कर्णकुंडल गिरा था। वहाँ पे है चक्र पुष्करणी कुंड, जहाँ पे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये है काशी का शमशान मणिकर्णिका, जहाँ पे साल के 365 दिन 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। काशी अविमुक्त है, ये मुक्ति का क्षेत्र है, यहाँ लोग मुक्ति के लिए आते हैं, तो इस घाट का महत्व बन जाता है। ये
ये पुराणों में ऐसा माना गया है कि काशी विश्वनाथ जी का ये शयन स्थल है। बाबा विश्वनाथ रात में यहीं विश्राम करते हैं, मणिकर्णिका पे। ये आपके सामने है ललिता घाट। ललिता घाट नाम क्यों पड़ा? ऊपर में ललिता गौरी का मंदिर है और यही है काशी विश्वनाथ गेट नंबर 1, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यहीं से हम लोग मंदिर के लिए ऊपर जाएंगे। मंदिर के 4 गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। तो ये है गेट नंबर 1, ये गंगा घाट का है, गंगा द्वार, ये इसका नाम है गंगा द्वार। ये ललिता घाट है। ललिता घाट के ऊपर में ये पशुपतिनाथ का मंदिर है। ये मंदिर पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। ये नेपाल नरेश के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर है। कौन सा? ये वो रेड वाला, हाँ हाँ वो पूरा लकड़ी का बना हुआ मंदिर। ये पेड़ के पीछे वाला और दूसरा कौन सा घाट है? अभी आ रहा है। आपके सामने नील घाट, ऊपर में माता विशालाक्षी का मंदिर है। काशी में एक ही शक्तिपीठ है, वो है माता विशालाक्षी। ये नील घाट से ऊपर आप विशालाक्षी के लिए जाएंगे और उसके बगल में त्रिपुर भैरवी घाट, ऊपर में त्रिपुरा भैरवी माता का मंदिर है, इसलिए इस घाट का नाम है त्रिपुर भैरवी घाट। ये है वाराही घाट। वाराही घाट वाराही माता है। वाराही माता का मंदिर साल में एक बार खुलता है नवरात्रि में, जिस दिन केवल, बाकी दिन वो मंदिर एकदम क्लोज रहता है, किसी को दर्शन नहीं मिलता है। तो ये है वाराही घाट। ऊपर में ये मकान है कल्लू बंगी का। यहीं पे कल्लू बंगी ने राजा हरिश्चंद्र जी को खरीद लिया था। जब राजा हरिश्चंद्र जी अपने आप को त्याग किए तो अपने आप को उनको बेचना पड़ा परिवार चलाने के लिए। तो यहीं पे कल्लू बंगी ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया था। इसके बारे में आपको विस्तार से, जब हम राजा हरिश्चंद्र घाट पहुंचेंगे तो इस कल्लू बंगी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमने 2 शेर बनाया ना ऊपर, हाँ हाँ, ये कल्लू बंगी का मकान है। जो लॉयन बना ना 2 टाइगर। ये सामने मान मंदिर घाट। मान मंदिर घाट भी बोलते हैं इसको, मान महल घाट भी बोलते हैं। इसको राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो राजा मान सिंह ने अपना इसमें महल बनाया था। आज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। इसके अंदर संग्रहालय है, म्यूजियम। ये आप जा भी सकते हैं यहाँ, लेकिन इसके लिए आपको रोड से जाना पड़ेगा। ये म्यूजियम है, मान महल घाट का म्यूजियम, ऊपर में अंदर। हाँ आप, हाँ यही, हाँ ठीक है। फिर उसके बाजू में आप क्या आ रहा है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। राजेंद्र प्रसाद घाट नाम क्यों पड़ा? ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे ये घाट का नाम पड़ा है। और यहाँ पे भी गंगा आरती होती है। और इसके बाजू में है प्रयाग घाट। प्रयाग घाट क्योंकि प्रयाग का जल यहाँ गंगा में आता है, तो यहाँ पे भी एक प्रयाग घाट बनाया गया है। प्रयाग घाट के बगल में है 10 अश्वमेध घाट। यहीं पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध का यज्ञ किया था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा 10 अश्वमेध घाट। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती जो आप लोग देखते हैं वो महत्व इसी घाट का है। और बाजू में शीतला घाट, शीतला माता का मंदिर है और बहुत ही मानते हैं काशीवासी शीतला माता को। इस मंदिर का महत्व बहुत है। ये सामने है अहिल्याबाई घाट। ये घाट अहिल्याबाई होलकर के नाम पे बना है। जब मुगल काल में, जब मुगल यहाँ आए थे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया था, जिसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। तो उन्हीं के नाम पे बनाया गया घाट है अहिल्याबाई घाट। ये सामने मुंशी घाट है। ये जो कवि थे मुंशी प्रेमचंद, ये उन्हीं के नाम पे बनाया गया घाट है मुंशी घाट। और ये बगल में है दरभंगा घाट। दरभंगा घाट, दरभंगा बिहार में पड़ता है, दरभंगा जिला। दरभंगा के राजा ने आया था, ये उन्हीं के नाम पे बनाया गया घाट है दरभंगा घाट। और यही है ब्रिजमा पैलेस। काशी में घाट पे सबसे महंगा होटल है ब्रिजमा पैलेस। बनाइए वीडियो इसका। हाँ
पूछो ना ऊपर नामे से तो अरे ये सामने आपके चौसठी घाट, ऊपर में चौसठी माता का मंदिर है। मंदिर का खासियत ये है कि ये मंदिर साल में एक बार खुलता है होली के दिन, बाकी दिन क्लोज रहता है। तो इस घाट का नाम पड़ा है चौसठी घाट। ये मंदिर साल में एक बार खुलता है, केवल होली के दिन, बाकी दिन क्लोज रहता है। वो विशेष है, विशेष है, एक दिन का विशेष। ये सामने दिक्पतिया घाट, ये कलकत्ता का दिक्पतिया परिवार था, ये दिक्पतिया हाउस है। इस घाट का नाम पड़ा दिक्पतिया घाट। वो विशेष क्या है? ये दिक्पतिया हाउस ऐसे कलकत्ता से ये दिक्पतिया फैमिली था, वो सभी काशी में, अभी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से नाम क्यों पड़ा, क्या है वो लास्ट में बताएंगे, वो एंड करते समय। ये देखिए सामने पांडे घाट, बबुआ पांडे घाट, ये यहाँ के पांडे लोगों के द्वारा बनाया गया घाट है, बबुआ पांडे घाट। ये है राजा घाट, ये राजा रणजीत सिंह ने बनवाया था इस घाट को, ये उन्हीं का महल था, तो इस घाट का नाम पड़ा राजा घाट। ये राजा घाट के बगल में नारद घाट, नारद घाट का यहाँ नारद जी ने श्राप दिया है, यहाँ पे सास और बहू एक साथ नहीं नहाती हैं, नहीं तो उनका झगड़ा होता है, तो इसलिए इस घाट का नाम है नारद घाट। नारद घाट, मानसरोवर, ये सामने मानसरोवर घाट, ये मानसरोवर के राजा ने इस घाट को बनवाया था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है मानसरोवर घाट। ये सामने क्षेमेश्वर घाट, यहाँ पे क्षेमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1962 में हुआ था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा क्षेमेश्वर घाट। आपके सामने है चौकी घाट, चौकी घाट इसका नाम क्यों पड़ा, पहले राजा महाराजाओं के समय में, उस समय पुलिस तो था नहीं, राजा महाराजाओं के समय में यहीं पर चौकी दरबार लगता था, जिसका भी जो भी पंचायत होता था यहीं पे लगता था, तो इस घाट का नाम लग गया है चौकी घाट। ये आपके सामने है केदार घाट, ऊपर में गौरी केदारेश्वर जी का मंदिर है। ये काशी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बाबा केदारनाथ माता गौरा के साथ विराजमान है, तो इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है गौरी केदारेश्वर। काशी में अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था बद्रीनारायण, तो बद्रीनाथ का भी धाम है, केदारनाथ का भी धाम है। जो लोग केदार धाम नहीं जा पाते हैं वो यहाँ दर्शन करते हैं, तो वही फल प्राप्त होता है। और उसके बाद में विजयनगर घाट, ये विजयनगर के राजा के द्वारा बनवाया घाट, ये उनका पूरा महल है, वो देखिए रेड वाला, ये विजयनगरम के राजा ने बनवाया था। ये आपके सामने है हरिश्चंद्र घाट, ये काशी का दूसरा शमशान घाट है। यहीं पे राजा हरिश्चंद्र जी यहाँ पे लाश जलाने का काम करते थे, तो मैंने पीछे जो कल्लू भंगी का आपको मकान दिखाया था, उसने राजा हरिश्चंद्र जी को खरीद लिया था, तो राजा हरिश्चंद्र जी से यही काम करवाता था। तो काशी में यहाँ से काशी से 4 लोग स्वर्ग गए हैं, तो 4 लोग स्वर्ग कब कौन कौन गया, तारावती, उनकी पत्नी, राजा हरिश्चंद्र, उनका बेटा रोहित, और उनके साथ एक कुत्ता चला गया। हाँ, उनके साथ यहाँ से कुत्ता चला गया, तो यहाँ से 4 लोग स्वर्ग गए हैं। तो ये है राजा हरिश्चंद्र घाट का महत्व, और यहीं पे वो उन्होंने सब कुछ अपना त्याग किया, और यहीं से वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाए। सभी लोग बोलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ की, बाबा काल भैरव की, हर हर महादेव। ये आपके सामने देखिए कर्नाटका घाट, ये कर्नाटक के जो पहले के राजा महाराजा थे वो भी यहाँ मुक्ति के लिए आए थे। तो काशी का महत्व, काशी का महत्व, घाटों का महत्व क्या था, आपने इसके बारे में क्या समझा, कुछ आपको समझ में आया? काशी मुक्ति का क्षेत्र है, ये अविमुक्त है, ये अविनाशी है। प्रलय जब आएगा
तो सभी जगह आएगा, लेकिन काशी हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसको भगवान शंकर ने बनाया था। इसका नाम था आनंद वन। तो भगवान शंकर ने अपने लिए आनंद वन बनाया था, तो इसको अपने त्रिशूल की नोक पे रखे हुए हैं। भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पे काशी बसा हुआ है। तो घाट का महत्व यही था कि पहले के लोग यहाँ कल्पवास करने आते थे। जब उनको लगता था कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो काशी आके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। तो लोग आते गए, राजा महाराजा वो अपना अपना घाट बनाते गए। तो ऐसे ही सारे घाटों का निर्माण होता गया और यहीं से आपकी काशी यात्रा समाप्त होती है। ಸರ್ ನಾವು ಕಾಶಿ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಮಲ್ಲಣ್ಣವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಶಿ ಫುಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಾಶಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಘಾಟ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನೋಡ್ದೋ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ದೋ. ತುಂಬ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮಲ್ಲಣ್ಣವರು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಈ ಸತಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು, ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಗಂಗಾರತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನಿಂತಿದ್ರು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಂಗಾವತಿ ದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ये आप देख रहे हैं काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। ये दशाश्वमेध घाट है, यहीं पे विश्व प्रसिद्ध गंगा जी की आरती होती है। इसकी शुरुआत सन 1985 1985 में यहीं इस घाट के तीर्थ पुरोहित थे बाबू महाराज, और उनके पिताजी थे मुंडन महाराज। ये लोग गए थे हरिद्वार। इन्होंने हर की पैड़ी में हरिद्वार में जब देखा कि वहाँ पे गंगा आरती होती है, तो ये लोग वहाँ से आए। तो यहाँ पे अपने घाट पे दशाश्वमेध घाट पे इन्होंने गंगा आरती की शुरुआत की सन 1985 में 1985 में। और गंगा आरती का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है, गंगा आरती क्यों होती है? गंगा आरती गंगा के प्रति उनका हमारा सम्मान है, क्योंकि गंगा जब धरती पे अवतरण हुई तो गंगा ने सबका पाप धुला और सभी लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। इस वजह से ये गंगा आरती होती है, एक सम्मान का प्रतीक है। गंगा आरती मतलब गंगा के प्रति हमारा एक सम्मान है। तो इसलिए ये गंगा आरती होती है। ये गंगा आरती डेली साल के 365 दिन होता है। तो आप बोट से भी देख सकते हैं, आप उधर सीढ़ियों से भी देख सकते हैं। ये आरती टोटल 45 मिनट का होता है और इसमें सबसे पहले भजन होता है, उसके बाद धूपम से होगा, फिर दीपक से होगा। ये टोटल 45 मिनट्स का ये होता है। ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ವಿ, ಕಾಶಿ ಬಂದ್ವಿ. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕಾಶಿ ಸಿಟಿ ವಾರಣಾಸಿನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬೋಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೋಟೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ವಿ. ನಂತರ ಗಂಗಾರತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.
ರಾತ್ರಿ 8:30ವರೆಗೂ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸೋದಾಗ್ಲೇ ಅದರ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರವಾಸ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಣ್ಣವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಊಟ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಸ್ಸು ಸೌಕರ್ಯ, AC ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ನಂಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ತಿಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಾತ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪುನಃ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸೇರುವಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ 144 ವರ್ಷದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆದಿದ್ದು 40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗಸಾಧುಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶೇಷ. ಆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಂತೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವಂತೂ ಅದೇ ಅನುಭವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಯಾವುದು, ಯಮುನಾ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ನಾನು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅದು, ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ವಾಪಸ್. ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬಡೆ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಬಡೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮಲಗಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸರಯೂ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಾಲರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದೇವಾಲಯದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ 3 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಟೆ, ಕುಣಿತ, ತಮಾಷೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮನೆ ಸೇರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ, ರೂಮ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಓಡಾಡಲು AC ಬಸ್, ಆಟೋಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ.